A very warm welcome to all the delegates and veterans of this industry to the North India Blow Mold Tank Manufacturers Association meeting 2015. On behalf of my team, Team Mundra, I would like to extend my gratitude and thank you from all my heart for this opportunity given to us and taking out time for this discussion. It is overwhelming. First of all, I would like to say why we are gathered here today. We are here to discuss on problems and discussion on the solutions that has been faced by the blow mold tankers. Everybody knows it, but everybody is. It is an opportunity to discuss on this, the problems and solutions faced by the blow mold tankers. So, not taking too long, we would like to start the presentation. We would start with a brief intro about the company, Mundra Chemicals. And I would like to call Mr. Abhishek Mundra, our sales director, to start the presentation. Hi everyone. Am I audible enough? Sir, आप लोग सुन सकते हैं ना मेरे को? First, एक जो लैंग्वेज आज का रहेगा थोड़ा सा हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूँ ताकि हम सब कंफर्टेबल रहे, मैं भी कंफर्टेबल रहूँगा, हिंदी रहेगा तो ज़्यादा. To start with, the reason that we are gathered here is, of course, we need to discuss about the problems and the solutions, what we are facing with the blow industry. As far as I understand, blow industry is not very old, whether it is India or it is China or it is US or anywhere. And we have done a little study, of course. We have been studying on this subject from last 4 or 5 months. And this is, of course, because of one of the customer who is sitting here. And उनकी वजह से हम इस इंडस्ट्री में आए, हमने वर्किंग चालू करी. तो sir, I'm so sorry. Before I go ahead, I am really thankful to the association that we have been given this opportunity to present our paper here. We as a company, Mundra, we are a solutions company. We are not a master batch company. So basically we are not here to promote the master batch. Sir, I'm sorry, I'm doing a little time pass because we are waiting for a few more people to come. So don't mind that. So we are a solutions company. We work with our clients very closely to find out the solution for a particular industry. We have been working in India from last 17 years. We are partnered with a German company, Color Service. They are the world leader in master batches. We have been their sales partner in India from last almost 15 years now. And like about 6 years back, हमने अपना प्लान डाल लिया यहाँ पे. हम देख रहे थे इंडिया बहुत ग्रो हो रहा है. And when we were a trader, so we were much bigger than any of the manufacturer in India. So that was the potential India had. मतलब इतना सेल था, हम लोग ट्रेडिंग करके बेच रहे थे. हमने बोला why not we start this production in India. So there was a gap in the market where people wanted a really high quality, so where we were selling that master batch. And then there was a market where people were quality conscious, चाहिए अच्छा quality, but of course not at the German prices. So this was the place where Mundra started, and we came into existence. Basically, we are majorly into automotives. We are major OEM suppliers to Maruti, Honda, Toyota, TVS. This is one of the main forte of the company. In automotives, again if I say, हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए काम करते हैं because there is a requirement of UV. Automotives, they require very stringent qualities and terms in terms of UV and degradation of polymer. So this is the forte of our partner, German partner, Color Service, and with the same focus, we started a plant in India to cater to the customers who actually need UV. When we talk about UV, इंडिया में लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि still we are coming to know कि UV क्या है. हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि UV मास्टर बैच से रिलेटेड है. UV has to do something with the color. यही अभी तक हम लोगों के दिमाग में है कि यार कलर उड़ गया मतलब UV नहीं है, इसके लिए कलर उड़ गया. तो इसमें एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, UV का और कलर का मास्टर बैच का कोई लेना देना नहीं है आपस में. UV हमेशा पॉलीमर के लिए होता है. बहुत एक लेमन भाषा में बोलूँ सिंगल लाइन में तो वी हैव सन, उससे लाइट आती है, दैट इज द एनर्जी.
उसमें यूवी रेज रहता है, यूवी रेज आता है पॉलीमर में पड़ता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको काटने लगता है, अंदर जाने लगता है, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, पॉलीमर चेन्स टूटने लगती हैं. नाउ दिस इज द बेस. सो पॉलीमर इज ऑलवेज द बेस. जैसे हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नींव होती है हमारी. सो पॉलीमर इज ऑलवेज द बेस. अब जब तक हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती है. मास्टर बैच क्या है? इट्स अ कॉस्मेटिक. ऊपर से पेंट करते हैं ना, आप लोग तो कलर कर दिया. सो कलर मास्टर बैच इज द कॉस्मेटिक टच टू योर प्रोडक्ट. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. अब जब हमने पॉलीमर लिया, धूप आ रही है, पॉलीमर को तोड़ रही है, मास्टर बैच क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता. वी नीड समथिंग टू सेव गार्ड. हमको अपने पॉलीमर को बचाना है. दिस इज वेयर द यूवी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये यूवी का काम है. वो पॉलीमर डिग्रेडेशन को बचाता है. आपने अपना पॉलीमर बचा लिया, अपनी नींव बचा ली, बिल्डिंग खड़ी रहेगी, पेंट कहीं नहीं जाएगा. दिस इज इन जनरल जो एक मैं बताना चाह रहा था कि यूवी क्या है. Apart from this, there are a lot of other things that we will be discussing. I'll try to इसको दो भाग में बांटूंगा. आज की प्रेजेंटेशन को कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं. नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बोर नहीं करूंगा आप लोगों को. तो पहला पार्ट रहेगा फटाफट 5 मिनट्स का एक क्विक रिव्यू कंपनी के ऊपर कि मुंद्रा क्या है, क्या हम लोग करते हैं, क्या करते आए हैं. आई जस्ट टेक 5 or 7 minutes इन दैट. और उसके बाद स्ट्रेट अवे कि आज जो मेन टॉपिक है, द एजेंडा ऑफ द डे फॉर विच वी हैव कम टू डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स ऑफ द ब्लो इंडस्ट्री. आई विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स related to my product, that is with the UV, with thermal degradation, with functional master batches. क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या खाली यूवी या क्या खाली ये एडिटिव्स आर दे इनफ कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सही रहे, या खाली हम एक अपने प्रोडक्ट से ही कोई एक ऐसा जादू कर दे कि बस हमने एक जादू की गोली दी, पुड़िया दिया, आई एम सॉरी अमित जी, आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा. सर ऐसा नहीं होता है जनरली. व्हेन आई टॉक अबाउट एडिटिव्स एंड प्लास्टिक्स, कलर्स एंड ऑल, दे आर पार्ट ऑफ इट. वो आपको हेल्प करते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम नहीं रिजॉल्व कर सकते. वो मोल्ड से रिजॉल्व होता है, आपके प्रोसेसिंग से रिजॉल्व होता है, देयर आर अदर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस जिससे रिजॉल्व होता है. सो I think shall we start? Amit, are we good? Okay, everyone. So, and he is the guiding force for the company, the vision that we have been following in the company. So, Mundra, we are basically into master batches, additives, and compounds. This is what we make, we manufacture. These are our color partners, Color Service Germany. They are one of the industrial leaders in Europe. They are official suppliers to Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Daimler, BMW in Germany. So this is the kind of technology या experience आप लोग बोल लो इन लोगों के पास है. काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ, और we are also trying to have some kind of a technology tie-up also with them very soon, so that we have the experience to the bank that they have, the knowledge bank. So what we do, so basically Mundra is into various different businesses, soda, leather, chemical, and others, but we'll not discuss on that. We are ISO 9001 2008 company. This is one very important thing. We offer FDA master batches. So generally if you check, अगर आप लोग टैंक बनाते हैं और अंदर पानी रहता है, तो it is at some time important कि अगर हम एथिकल पॉइंट से ले या जनरल ह्यूमन पॉइंट से ले, तो जो पानी रहता है वो पानी आज लोग पीने वाले हैं, वो पानी अल्टीमेटली घर में जाने वाला है, हर आदमी वो पानी पीने वाला है. सो वी शुड मेक श्योर एज अ टैंक मैन्युफैक्चरर और मी एज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कि मैं जो आप लोगों को मास्टर बैच दूं वो फूड ग्रेड हो, क्योंकि वो पानी सर मैं भी पीऊंगा, आप लोग सब भी पियेंगे. वी आर ऑल्सो ROHS कंप्लाइंट कंपनी. ROHS ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, बिकॉज दीज आर द टर्म्स जो बाहर ऑलरेडी पिछले 10 साल से चल रहा है, इंडिया में आना शुरू हो गया है. कोई भी नई चीज सबसे पहले ऑटोमोटिव में आती है, वेयर वी आर मेनली एसोसिएटेड विद, तो हम लोग ये इंडिया में भी 5-7 साल से कर रहे हैं ऑटोमोटिव्स के अंदर. स्लोली एंड स्लोली ऑल द इंडस्ट्री ये लोग भी रियलाइज करने लगे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है. पेंट में आने लग गया, घरों में जो पेंट होता है,
अब वो सब ROHS कंप्लाइंट होता है, उसमें हैवी मेटल्स नहीं होता है, लेड, क्रोमियम, हेलोजेंस, इससे क्या बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, TB होता है, ये सारी बीमारियां। सेम थिंग गोज विद मास्टर बैचेस ऑल्सो। अगर हमारे मास्टर बैच ROHS कंप्लाइंट नहीं है, फूड ग्रेड नहीं है, तो हम क्या दे रहे हैं फॉर द जनरेशंस टू कम? आने वाले हम बाजार में दे क्या करेंगे? गंदा कंटामिनेटेड पानी उनको पीने के लिए, विच इज नॉट FDA। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पानी में या प्रोडक्ट में हेवी मेटल्स मिलाएगा, विच विल अल्टीमेटली गो इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जाने वाला। सो यस, कैन यू गो टू द अदर स्लाइड ज्योति? We are 100% ROHS compliant company. I'm proud to say that Mundra is the only company in India who is 100% ROHS compliant. This means in the same premises, in the same factory, हम non ROHS products नहीं बनाते हैं, क्योंकि it is not possible कि एक ही मशीन में ROHS भी बनाऊं और non ROHS भी बनाऊं, वो contamination हो जाता है। तो we as a company have decided ethically कि हम non ROHS products नहीं बनाएंगे, and this is how we move forward. We are the only company, our German partner, who has a technology of universal master batch. One master batch colors all polymers. आप एक ब्लैक लीजिए मेरे से, नायलॉन, ABS, PP, HD, LD, कोई भी पॉलीमर हो, कोई भी MFI हो, whatever is your grade, it's extrusion, it's blow, it's injection, one master batch works. So you do not have to bother कि यार ये master batch MFI मैच करेगा कि नहीं, ये इसके साथ प्रोसेस ठीक से होगा कि नहीं, हीट ठीक से आएगा कि नहीं। तो this all is taken care of. This is a patented technology by our German partner, and of course we do the same thing. We sell these products, we represent them in India. We are into polymer specific master batch, combi master batches, UV master batches, some glitter, color, gloss, all of that, all of you. Next, we are into some specialty additives, UV additives, some purging compounds, foaming agents, to reduce the weight, flame retardants. Of course, flame retardant has got nothing to do. This is one very interesting topic here. We are into very specialty additives. These additives were launched by our company in Plast India, recently held, and we have a technology partner from US for this product. One of the very interesting product जो आप लोगों के लिए होगा, वो मेरे हिसाब से antimicrobial. तो एंटीमाइक्रोबियल एक प्रोडक्ट है जो आप इट्स बेस्ड ऑन अ सिल्वर टेक्नोलॉजी, चांदी की टेक्नोलॉजी पे बेसिकली, अगर लेमन भाषा में बोलूँ तो है। और ये आप अपने टैंक में इनर लेयर में यूज़ कर सकते हैं, इससे जर्म्स नहीं पैदा होंगे, फंगस नहीं होगा पानी में टू सम एक्सटेंट, यस, एंड ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह नहीं पैदा होंगे। सो दिस कैन बी वन ऑफ द मार्केटिंग product that you can use in the industry. So we have Freshness Plus, rodent additive. This is to repel the rodents. चूहों को भगाने के लिए, चूहे वगैरह आते हैं, काटते हैं, तो उससे अगर, but I don't think so टैंक में ये प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ होता है अमित जी आप लोगों को? Sorry, गेम रिस्की आ गए। These are all the basically marketing gimmicks, you know. जितना आप ज़्यादा डालो, ये भी दिखाओ, एक स्टिकर ये लगा दिया, एक UV का स्टिकर लगाया, एक एंटी माइक्रोबियल का स्टिकर लगाया, एक नीचे लेयर का स्टिकर लगाया, तो of course we all know this is to be done. We are into some very specialty compounds also. This is again majorly for automotive and electrical industries. Very here there is one thing when we talk about compounds. तो एक ऐसा compound भी बनता है tank industry के लिए, which gives you insulation. Now what is insulation? We will talk about it later. But there is a product we can make as a master batch with color, additives, everything, and also the insulation. So basically insulation, what it does, it doesn't let your tank heat up. Tank को गर्म नहीं होने देता है, तो वो वाला काम करता है. So you get everything in one. अलग अलग 4-5 चीज नहीं डालना है, एक प्रोडक्ट डाला, काम हो गया. You the next slide. These are some of our key customers. We are official vendors to Maruti, Hero, Toyota, TVS. They're one of our major customers in automotives. We're into electrical. Schneider India, I'm the sole customer supplier to them in India. We have Havells, WaterTech India. This is one company which is one of the biggest company in South, and they are manufacturing taps, plastic taps. They are one of the very specialized companies
It's a Malaysian company and they have a JV in India with a Coimbatore-based company. And a very high-tech kind of a business, and they use very engineering plastics. So we are supplying some very special master batches to them. Of course, antimicrobial also for their flush tanks. This is one of the very big application wherever the water is concerned, antimicrobial is there in the picture. Next. Yeah, so we are based in Delhi and our factories are also in Delhi. Pitampura is the corporate office and we can circulate our cards to contact us. Can we move to the second presentation, Jyoti? Thank you everyone for paying attention. I hope बोर नहीं हो रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा जल्दी move करता हूँ. So the agenda of today, we are all gathered here to discuss on the problems and the solutions, the topic of the day, and we have some technical presentation to discuss with you what are the problems हमारे टैंक इंडस्ट्री के अंदर और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स और आइडेंटिफाई किए हैं इंडस्ट्री में. कुछ यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनकी फैक्ट्री में भी मैं गया हूँ, उनसे मिला भी हूँ, कुछ के साथ मैं काम कर भी रहा हूँ, उनकी कुछ लोगों की फैक्ट्री में मैं सॉल्यूशंस दे भी रहा हूँ. So I am doing it from last 4 months. I am working on this, and I will also request कि आप लोग भी थोड़ा मेरे को गाइड करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री के अंदर. Because as I said, we are not a master batch company. We are a solutions company. We walk the last mile. हम आखिरी रास्ते तक आपके साथ चलते हैं solution ढूंढने के लिए. This is what we do. This is the base of Mundra. So I am not here. The team is not here to sell master batch. We are here to basically find a solution for the industry. This is what we have been doing and this is what we'll do today also. So blow molding, of course we all know, it's a manufacturing process where the hollow plastic parts are formed. The raw material is first melted and formed into a hollow tubes. We call it Parisen, and then of course the Parisen comes in and the mold gets in. Of course we all know the process. And there are different kind of applications, water tank, fuel tank for automotives. This is one very interesting application. I did this application 4 years back again for automotive industry. This was the time when blowing tanks was coming into India and people were still getting to know कि यार कैसे बन सकता है. Of course it was done abroad. बाहर बहुत लोग कर रहे थे. Drums and containers, household items of course. There are few common grades which is used. गेल का एक ग्रेड है जो हम लोग यूज करते हैं. This is B52A. This is used generally for 5-liter containers, but we use it in blow molding. There is another grade B55HM. It is used for 50 to 120 liters, but still we use in blow molding. So this is I have seen IOCL के भी ऐसी 2 grades हैं. ये हम लोग जो कि recommended है 50 liters, 120 liters. And we use it for blow molding. So I am sure this is for the reason because मैंने थोड़ा अपना स्टडी किया कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं. तो there is a company called Qnos, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो ब्लो मोल्डिंग के बहुत अच्छे ग्रेड्स देती है, which is very famous also in Australia. There is another company called Lotto जो अगेन ये ब्लो मोल्डिंग के ग्रेड्स देती है. बट मैंने एक चीज़ कॉमन देखी, इन लोग के किसी के पास भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहाँ ये लिखे कि ये 2000 लीटर के लिए सूटेबल है या 1000 लीटर के लिए सूटेबल है. सो जनरली दीज आर द ग्रेड्स. यही ग्रेड है जो हम लोग यूज़ करते हैं. आई एम सॉरी अगर इसके अलावा भी कुछ करते हो. देयर आर अदर फ्रॉम रिलायंस एंड हल्दिया ऑल्सो, बट मुझे लगता है मेजरली यही ग्रेड्स यूज होते हैं, है ना सर? कुछ ऐसा ही है. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द डे, चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्लो मोल्डर्स. सर यहाँ आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ये वाली स्लाइड में. दीज आर द फ्यू चैलेंजेस what I think is the main challenges which is faced by all of you in the industry. We have premature failures of blow tanks which causes reputation loss and high replacement cost. ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है. बार बार रिजेक्शंस होते हैं, माल वापस आता है, फिर मंगाने का पैसा दो. एक गाड़ी जा रही है माल छोड़ने के लिए, उसके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी भी जा रही है, यार जो टूटेगा रास्ते का वो भी वापस ले आइए. तो आई थिंक ऐसा भी कुछ होता है, मार्केट में सुना है. तो दिस शुड नॉट बी द केस. जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक गाड़ी पीछे पीछे भी जा रही है यार.
So what is the challenge? The challenge is we need longer life. हमको लाइफ ज़्यादा चाहिए अपने टैंक्स में. रोटो मोल्डिंग टैंक्स के कंपैरिजन में रोटो टैंक्स ऑफ कोर्स दे हैव गॉट अ वेरी गुड लाइफ. 5 साल 10 साल कभी खराब नहीं होते. तो वाई इन ब्लो? हमारे ब्लो मोल्डिंग में ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये टैंक्स बार बार खराब होते हैं, प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैकेनिकली फिजिकली टूट रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं. रोटो टैंक्स देखो तो डिग्रेड नहीं होते, 10-10 साल तक भी टंकी छत पे पड़ी है तो पड़ी है, खराब ही नहीं होती है. So we will discuss more on this. Why we are using 3 and 4 layers? हम क्यों एक टैंक सिंगल लेयर में नहीं बना रहे हैं? I had this question last night. जब मैं घर पे था तो मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होता है कि हम कोई चीज़ एक ही लेयर में क्यों नहीं बना लेते? और इज इट पॉसिबल कि एक प्रोडक्ट जो 5 mm का एक ही लेयर में बना हुआ हो, क्या वो स्ट्रॉन्गर है एक ऐसे प्रोडक्ट से जो कि 3 लेयर में 1-1 mm में बना हुआ हो? तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं कोई रस्सी होती है तो उसको लेके जाकर मुझे तोड़ना होता है, जब मैं उसको अलग अलग करता हूँ तो एक एक करके तो आराम से तोड़ लेता हूँ, सबको एक साथ तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो नहीं तोड़ पाता हूँ. सो विद दैट थिंकिंग इन माइंड मैं ये सोचा था कि यार ऐसा क्यों है कि हमने इसको लेयर्स में रखा, और क्या ये लेयर की वजह से भी टैंक टूट सकते हैं? क्या इज दिस वन ऑफ द रीजन दैट यूवी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो इजी हो जाता है इनको तोड़ना, या स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस मार्क्स क्रिएट होते हैं, हम इसके ऊपर अभी और डिस्कस करेंगे. तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. पुअर वेदरिंग एंड यूवी स्टेबलाइजेशन, ये एक बहुत कॉमन टर्म है. हम सारे बोलते रहते हैं यार यूवी उड़ गया, यूवी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट टूट रहे हैं यूवी की वजह से. क्यों टूट रहे हैं, किसके लिए टूट रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. कोई भी चीज आए यूवी होगी, यूवी की वजह से ही टूट गया. कोई भी क्रैक आए यार वही रीजन है. हम ये नहीं सोचना चाहते यार क्या प्रोसेसिंग के कारण कोई और भी रीजन हो सकता है. जरूरी नहीं है प्रोसेसिंग से, पर कोई स्ट्रेस मार्क हो सकता है, विच इज वन ऑफ द पॉइंट्स हियर. पुअर डिस्पर्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जब तक मटेरियल हमारा पूरा डिस्पर्स नहीं होगा, चाहे यूवी है, कलर है, पॉलीमर है, जब तक एक टैंक बना पूरा डिस्पर्स नहीं हुआ, जहां वो डिस्पर्शन नहीं होगा वो एरिया वीक रह गया प्रोडक्ट का, वहां पे यूवी पूरा नहीं चढ़ा. आपने यूवी तो डाल दिया लेकिन डिस्पर्शन पूरी नहीं हुई. डिस्पर्शन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? अगेन वो सबसे वीक एरिया है. जब सनलाइट पड़ेगा, यूवी आएगा तो वो वहीं पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा और वहीं से तोड़ना शुरू करेगा, और वहीं से तोड़ते तोड़ते वो बाकी पूरी पॉलीमर चेन है जो उसको तोड़ता चला जाएगा. इनबिल्ट स्ट्रेस, ऑल्सो नोन एज वर्टिकल क्रैक. थोड़ा एक मैं पूछना चाहूंगा सर, आप कुछ बता सकते हैं इनबिल्ट स्ट्रेस के बारे में कि क्या है? आशीष जी प्लीज आप ज़्यादा प्रॉपर माइक प्लीज. आप न्यू कमर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपनी. आप राजेश कहाँ से? गंगानगर. ओके. और आप Before we started, we should have introduction. Okay. That would have been better. But now since you have started, it's better to continue. Oh, I thought No, nobody knows. So if that is required, can we do that now? Yeah, I think it would be We are good. discussing the main problems here, so we can start with the Ola well known. Only two Intro, दोनों we'll introduction start with the चाहिए. intro बाकी and then we come back to the सबको problems. नहीं. तो सर ये एक्चुअली अच्छा एक बहुत अच्छा सजेशन है. सर आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम आपस में जान लें. ये अभी 1 घंटा और एक साथ में बैठने वाले हैं, पता तो साथ में कौन बैठा हुआ है, करता क्या है. तो टू स्टार्ट विद सर प्लीज, आपका नाम बताइएगा, कंपनी बताइएगा और सिटी का नाम. और सिटी का नाम. राजेश कुमार गुप्ता, गरुड़ वाटर टैंक से, श्री गंगानगर से. Good morning, everyone. I am Yogesh Petkar from Scitech Industries. We are into polymer additives, especially for UV stabilizers. Good morning, everybody. We are Mr. Narendra Jain, Director of Jaibar Saria and Water Tanks. We are from Himachal Pradesh, Kala. Hi, I am Ujjwal Agarwal from Aqua Polymers Kathua, JNK. I am Navi from Varanasi, Prince Tanks. Myself Sanjay Gupta, Polycan, Cathar. सर मैं जितेंद्र गर्ग, ओरेंट टैंक, कोटकपुरा, पंजाब. I am Rishi Mittal from Euro Group. We are dealing with brand Euro Organ and Euro. Bhuvesh Agrawal from Agra, Trimurti Tanks.
I am Vijay Khande, Sri Prabhu Petrochemicals, Sarita Water Tank, Aurangabad. Hi everyone, I'm Gaurav Dua from Star Tanks, Jammu. Hi everybody, Shravan Agarwal, Sheetal Tanks, Delhi. Good morning everybody. Bharat Agarwal, Sheetal Tanks, Delhi. Shankar Mundra from Mundra. Good morning, I am Ashish Baheti from Vectors Group. PC Chandna from Fuser. Good morning, Unique Chandna, Fusion. Hello everybody, Kiran Chandna from Fusion. Good morning everyone, I am Sumit Goel from Purewell. I am Pawan Palriwal from Patna, Christia Polytech Private Limited. Kuldeep Mittal, Purewell, Delhi. Vijay Agarwal, Shri Ganga Polytech, Ghaziabad. Hi everybody, Manoj from Polyplast, Dehradun. Naresh Jain from Prince Polytechs Private Limited, Jodhpur. Edward, Mumbai, Mall Road. Lalit Garg, Orient Tanks, Portpura, Punjab. Amit Bansal, Swami Delhi. Mahesh Agarwal, Eurotank, Delhi. SP Bansal, Swami Tank, Bharat. Thank you everyone. Before we start, I would like to request you all to please put your phone on silent mode so that the presentation is not disturbed. Thank you so much. Very big gathering. People from almost from all over India. I was not expecting this people. मैं सच्ची में इतना prepared नहीं था. So I'm very sorry अगर कुछ कमी रह जाए. Because you all are the industry veterans and सच्ची मेरे को सिर्फ 5 दिन मिले अमित जी तैयारी करने के लिए. तो ऑफ कोर्स कुछ कमियां भी हैं मेरी प्रेजेंटेशंस में रहेंगी. आप लोग इंडस्ट्री वेटरन्स हैं, डिग्निटरीज हैं, तो अगर कहीं कमी हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, which will help me again to finding the right solution. And I welcome all of you once again. And अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी से कि प्लीज थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्रॉब्लम्स में हमारा, प्लीज. Can you hear me? वाटर टैंक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है जो शायद आप सब लोग जानते भी होंगे और एग्री भी करेंगे कि एक बहुत रफ एस्टिमेट के साथ बात करें कि ब्लो मोल्डिंग की इंडिया में इस समय 100 मशीन्स आ गई हैं और एक एवरेज लेके चलें कि 50 लाख लीटर एक मशीन अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बनाती है तो 100 मशीन्स इंटू 50 लाख 50 करोड़ लीटर के आसपास का प्रोडक्शन पर मंथ इंडिया में ऑलरेडी ब्लो मोल्डिंग मशीन कैपेसिटीज लग चुकी हैं. अगर 50 करोड़ की बात करें तो 50 करोड़ लीटर को मल्टीप्लाई करें अगर आप एक एवरेज ले लें 4 रुपए लीटर का करते हुए तो करीबन 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए लीटर 200 करोड़ रुपए पर मंथ का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में आ चुकी है और उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो करीबन 2400 करोड़ का टर्नओवर ब्लो मोल्डिंग इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज इंडिया में लग चुकी है और ये एक मिनिमम एस्टिमेट है. मशीन्स और तेजी से आ रही हैं और ज्यादा लग रही हैं. एक ओवरऑल एस्टिमेट अगर इंडियन वाटर टैंक इंडस्ट्री की बात करें कि इंडिया में कितने के वाटर टैंक्स बिकते हैं पर ईयर अगर हम फ्लो रोटो सब मिलाएं सिर्फ वाटर टैंक की बात करें न कि प्रोसेस की तो करीबन एक एस्टिमेट है जो काफी क्लोज एस्टिमेट है 3000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में. तो उसमें इस समय से पहले ये ज्यादातर ब्लो मोल्डिंग के आने से पहले ज्यादातर मार्केट रोटो मोल्डिंग से फीड हो रहा था और इतनी 3000 करोड़ की कैपेसिटीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी. तो इसका मतलब हुआ है कि पिछले 4-5 सालों में 2400-2500 करोड़ रुपए का एडिशनल कैपेसिटीज ब्लो मोल्डिंग में लग चुकी हैं और उसका अगर आप ये देखेंगे उसी का कारण है कि इतनी ज्यादा ओवर कैपेसिटीज लग गई. मार्केट आज भी 3000 करोड़ का, इसी के कारण से कंपटीशन हो रही है. रोटो थोड़ा सा नीचे गिरा है पर इतना नहीं गिरा है जितनी कैपेसिटीज ये लग चुकी हैं. तो आज हम ये सारी जो देख रहे हैं प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो इसलिए भी आ रही है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आदमी कंपटीशन फेस कर रहा है और कंपटीशन फेस करने के कारण से वो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहा है. उसका रिजल्ट भी आ रहे हैं जो ये आज हम मेन जो हमारा एजेंडा है कि गारंटी कम क्यों हो रही है, ये सारी करने की जो बातें हो रही हैं वो कंपटीशन के कारण से ही कहीं ना कहीं उसका एक वो भी फैक्टर है. करीबन 6 साल पहले आज से 2009 में इंडिया का पहला ब्लो मोल्डेड टैंक हमारी काशीपुर फैक्ट्री में वेक्टर्स के नाम से हमने शुरू किया था और उसके बाद ही ये इंडस्ट्री थोड़ी इतनी फास्ट ये इंडस्ट्री ग्रो करी है
कि 6 साल में हम लोग ऑलमोस्ट उतनी कैपेसिटी की मशीन इंस्टॉल भी कर चुके हैं जितनी ओवरऑल ऑलमोस्ट इंडिया में रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत फास्ट ग्रो करी है इंडस्ट्री ने, और मुझे लगता है कि इतनी फास्ट ग्रोथ को ही ये इंडस्ट्री अभी संभाल नहीं पा रही है। और ये सारे जो टीथिंग प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इंडस्ट्री की, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि इतनी फास्ट इंडस्ट्री जो वाटर टैंक की इंडस्ट्री रोटो मोल्डिंग में 30 साल में डेवलप हुई, वो 6 साल के अंदर वो वैसा का वैसा डेवलप हो गया है, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्राइटेरियाज की किस तरह का रॉ मटेरियल, किस तरह की मोल्ड डिजाइन, किस तरह की प्रोसेसिंग कंडीशंस, किस तरह के मास्टर बैचेस, ये सब यूज करना, ये लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। और इसीलिए आज ज्यादातर इस इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं है, ये एक रॉन्ग मैसेज पूरी इंडस्ट्री को भी जा रहा है। आज जो दूसरे कंपटीशन वाले लोग हैं वो भी इस बात को मतलब बहुत और पब्लिसाइज कर रहे हैं कि ब्लो मोल्डिंग का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, और अल्टीमेटली तो लॉन्ग टर्म में देखें तो रोटो मोल्डिंग ही चलेगा। हम लोगों के भी 6 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में हमने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी हैं, हमने भी करी हैं, सीखा है और आगे उसके बाद बढ़े भी हैं। और मतलब क्योंकि हम सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं तो डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी ज़्यादा है। तो मेरा पर्सनली मानना है ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, इसको बनाने के रीजंस या कुछ और भी टेक्निकल रीजंस हैं, और बाकी कुछ कमर्शियल रीजंस भी आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन के कारण, जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। आपने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं सारे जो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो एक इन अ नटशेल सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं, और इसमें और कुछ ऐड करने का नहीं है एक्सेप्ट कि दीज आर द टेक्निकल रीजंस कि जिसके कारण से सारे लोग आज प्रॉब्लम में हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और हम लोग आज इसीलिए यहाँ डिस्कशन करने बैठे थे। एक ब्लो मोल्डिंग और रोटो मोल्डिंग के प्रोसेस में एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है कि रोटेशनल मोल्डिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो इसके कारण से उसमें इनबिल्ट स्ट्रेसेस नहीं होते हैं। और ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस है बहुत हाई प्रेशर पे होता है, आप इतने हाई प्रेशर पे उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके कारण से आपका एक इनबिल्ट स्ट्रेसेस होते हैं, और वही इनबिल्ट स्ट्रेसेस आज ब्लो मोल्डिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल को लेके ठीक है कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ आपने रॉ मटेरियल के ग्रेड्स बताए वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, क्योंकि और भी ग्रेड्स यूज हो रहे हैं जो कि और ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिग साइज ब्लो मोल्डिंग के लिए, और इंडिया में बन भी रहे हैं। जो आपने 003 ग्रेड बताया, उसके बाद एक 002 ग्रेड भी आता है जो कि यूज़ किया जा सकता है वो बिगर साइज ग्रेड, क्योंकि उसका MFI 0.02 होता है विच इज़ अ बेटर ग्रेड। तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, और दूसरा ये मैन्युफैक्चरर्स जो लिखते हैं 5 से 10 लीटर या 20 लीटर या मैक्सिमम 200 तक जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको खुद को उस समय एक एप्लीकेशन मालूम नहीं थी कि 1000 लीटर का भी टैंक ब्लो मोल्डिंग से बन सकता है। तो उनको जब अपना कंडीशंस डिफाइन करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उसी को लेके बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल 1000 लीटर के लिए या 2000 लीटर की मशीन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है, पर nobody even thought कि 2000 लीटर के टैंक बनेंगे, तो they never mentioned in their technical details. So probably that is the reason, not कि वो appropriate है ही नहीं, क्योंकि appropriate तो हम देख ही रहे हैं इतने समय से बन रहे हैं ना, और वो नहीं लास्ट कर रहे हैं, वो दूसरे रीजन से नहीं लास्ट कर रहे हैं, पर प्रोसेसिंग के समय तो बन ही जाते हैं, नहीं तो प्रोसेसिंग के समय भी नहीं बन रहे वो टाइम। तो एक तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू है, और अगर ये सबसे बड़ा इशू है, पर इसका मतलब ये नहीं है बाकी इश्यूज नहीं है, बाकी भी सारे इश्यूज हैं। यूवी स्टेबलाइजेशन इज अ बिग इशू। आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी बोला था, जो 3 लेयर 4 लेयर और अब 5 लेयर्स की भी बातें चल रही है, उसका कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं बनता है, पर एक कंपटीशन कुछ अलग हटने के कारण से आदमी बस बनाया जा रहा है कि हम अलग बनाएंगे, और फिर दूसरे लोगों को भी मजबूरियां हो जाती हैं कि बनाना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही रैट रेस जिसे कहते हैं लेयर बनाने के लिए। पर एज अ इंडस्ट्री लीडर वी हैव ट्राइड इन पास्ट एंड वेरी सक्सेसफुली ट्राइड मेकिंग सिंगल लेयर टैंक्स, एंड इट इज डूइंग वेरी वेल, एंड दोज आर द बेस्ट टैंक्स अवेलेबल। हम ये मतलब जो सबसे सस्ते टैंक है वो सबसे अच्छे टैंक है। हम खुद, हमारा एक सीरीज मैक्सिमा सीरीज चलती है जो कि पूरी ब्लैक है, बाहर भी ब्लैक अंदर भी ब्लैक, और मैं गारंटी से, अगर मैं अपने घर में लगाऊंगा तो मैं ये गारंटी से कहूंगा कि मैं वही टैंक लगाऊंगी, क्योंकि नेचुरली अलग अलग लेयर्स के कारण से वीकनेसेस आती हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू।
और पूरा ही अगर आपका वॉल थिकनेस में ब्लैक कलर यूज होगा तो ऑब्वियसली ये वेदरिंग वाली जो और स्टेबलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। पर मार्केट में डिमांड है वाइट की, क्योंकि सब लोग बना रहे हैं तो फिर बनाना पड़ता है, वो वाली एक समस्या सब लोग हम फेस भी कर रहे हैं। और 3 के बाद फिर 4 आए, 4 तक भी सही था, 5 भी आ रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ आया, आज तक नहीं समझ आया। और बाकी ESCR की आपकी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, मैं इसको पहले सोचता था कि ESCR प्लेज अ वाइटल रोल, पर अब मुझे लगता है ESCR इतना वाइटल नहीं है, क्योंकि HDP का ESCR ऐसे ही एज कम्पेयर टू LLDP बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर LLDP में भी हाई डेंसिटी LLDP पे जाएंगे तो उसका ESCR कम होता चला जाएगा, पर HDP के मुकाबले में ESCR इज वेरी वेरी हाई। सो ESCR लॉन्ग टर्म इज आई डोंट थिंक इज द थिंग। व्हाट आई फील इज द प्रोसेसिंग कंडीशंस हियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लो मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, रात में आपका टंकी बन रही है और रात में आपके 200 टैंक बने हैं, बाहर से आप देखेंगे सारे टैंक एक जैसे लगेंगे, पर अंदर अगर प्रोसेसिंग कंडीशंस ठीक नहीं हुई, कहीं वॉल थिकनेस फॉर सम रीजन कम आ रही है, तो 200 के 200 टैंक एक बार टूट के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कहीं हो सकता है 2 mm की वॉल थिकनेस रह गई हो, 1 mm की रह गई हो, और अगर क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है और आपकी मशीन पे कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऐसा हो रहा है। और ये भी एक बड़ा रीजन है कि एक पूरा का पूरा लॉट जब टूट के आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि लॉट ढंग का बना भी नहीं था। हम लोगों ने अपना सारा हमारा एक प्रोसेस कर रखा है अपनी सारे फैक्ट्रीज में, जिसमें एक एक टैंक जो लौट के आता है उसको हम चेक करते हैं और उसका एक रीजन निकालते हैं, रिसर्च एनालिसिस करते हैं इस बात को लेके कि ये टैंक लौटा क्यों है। और आज तक जितने भी टैंक लौटे हैं पिछले 3-4 सालों में, उसमें हमें एक एक टैंक का रिकॉर्ड मालूम है कि ये टैंक में क्या प्रॉब्लम आई थी। और आज 6 साल हो गए हैं, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आज की हमारा जो परसेंटेज है 1 से 1.25% के बीच में हमारा रिटर्न आ रहा है 6 साल बाद। तो 1 से 1.25% का रिटर्न तो हमारा रोटो मोल्डिंग में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो और इसीलिए इंडस्ट्री में जो इतनी परेशानी होती है, कई बार मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा इतनी भी ठीक है 1% भी ज्यादा है, मेरे हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए, पर अगर आप डिटेल में और जाके देखेंगे कि ये 1.25% भी क्यों आ रहा है, उस 1.25% का भी हमने बाइफर्केशन कर रखा है। 1.25% में ऑलमोस्ट 48, 49 या 50% ही मान लीजिए, वो तो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज, और हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये टैंक वापस आया। हमें ये समझ ही नहीं आता क्योंकि मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं वो कहते हैं ये टैंक तो सही आ गया है, पर लौट के आया, पर क्यों आया ये नहीं मालूम। और उसको हर तरह से हम चेक करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं लगता है, बस यही होता है कहीं दब जाता है, कहीं गंदा हो जाता है, काला हो जाता है, वाइट टैंक है कहीं काला हो गया, तो कस्टमर कहता है मैं तो नहीं लूंगा, इसको वापस कर देता है। अब बचा आधा, करीबन 0.75% की अगर हम बात करें, वो रिटर्न क्यों आता है, उसमें भी सिर्फ एक रीजन ही नहीं है, कई रीजंस हैं, पर जो एक जो मेजॉरिटी रीजन है वो एक जो इसका जो इनलेट या आउटलेट होते हैं, खास तौर से आउटलेट है, वहाँ एक क्रैक जो होता है वो प्रोपोगेट करता है, और वो बेसिकली जो प्लम्बिंग होती है वो ढंग से नहीं होती है, उसके कारण से कुछ स्ट्रेसेस रहते हैं, और ये प्रोपोगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि स्ट्रेसेस इनबिल्ट स्ट्रेसेस है। जो मेन प्रॉब्लम मैंने सबसे पहले बताई थी कि इनबिल्ट स्ट्रेसेस बहुत रहते हैं, और इसीलिए अगर कोई भी ऐसा नॉच किया जाए, जैसे जो स्ट्रेसेस जो चेकिंग होती है कि क्रैक कैसे प्रोपोगेट होता है, उसका जो साइंटिफिक तरीका होता है, आप एक नॉच देते हो और नॉच करने के बाद आप उसको देखते हो कि हाउ इज द क्रैक प्रोपोगेटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो और एक तरीके से जो छेद भी होता है आउटलेट का, वो भी एक नॉच ही है, और आपने वो नॉच करके उसको देखा तो वहां से क्रैक बहुत फास्ट प्रोपोगेट होता है और क्रैक हो जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इनबिल्ट स्ट्रेस दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। अब इस इनबिल्ट स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हो, ये आपकी प्रोसेसिंग कंडीशन का कंट्रोल है। अगर आप कूलिंग पे ध्यान दो, अगर आप कूलिंग टाइम बढ़ाओगे तो स्ट्रेसेस रिलीज ज्यादा होंगे, और वो ज्यादा होने के कारण से आपके इनबिल्ट स्ट्रेसेस कम रहेंगे, तो आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह के कई और प्रोसेसिंग कंडीशंस आप देख सकते हो। आप मतलब मोल्ड्स की डिजाइन में भी जो है वो भी एक बहुत इशू आप देखेंगे। हमारी भी 3-4-5 डिजाइन हैं, कुछ डिजाइन में परसेंटेज ज्यादा है, कुछ डिजाइन में परसेंटेज कम है। तो डिजाइन ऑल्सो इज प्लेइंग अ वाइटल रोल कि क्या रीजन हो रहा है। आजकल टैंक की डिजाइन देख के इतना अंदाजा शायद आप लोगों को भी लगने लग गया होगा, मुझे भी देख लग जाता है कि ये डिजाइन सही नहीं है और इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने कुछ डिजाइन को देखते से पास में बोला हुआ है, और आई कैन टेल यू कि वो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, आज की टैंक्स लौट रहे हैं। तो सिर्फ सुंदरता ही कोई चीज़ नहीं है, कई बार सिंपल डिजाइन इज अ बेटर परफॉर्मर डिजाइन। आज हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स जो आज नहीं है, उनकी कुछ डिजाइन है जिसे मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ, उसमें रिटर्न बहुत कम है।
क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रखें और रॉ मटेरियल ढंग से यूज करें और डिजाइन पे करें तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जितनी आज सारे लोग फील कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है। भारत जी को भी 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा अभी लेडी में थोड़ा गाइड कीजिए। नहीं, आशीष जी ने वैसे सारा कुछ कवर कर दिया है, बट मैं समझता हूँ जो मुद्दा हम बाद में लेने वाले गारंटी वाला, वो जो ब्लैंकेट गारंटी है उसकी वजह से भी हमारी रिटर्न्स जो है एक वो भी उसको प्रोपोगेट कर रही है, हमारी जो गारंटीज है उसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे। मेरे को लगता है कम से कम जो आशीष ने बताया 1% या 2% के, अब मान लो मेरे केस में 1.5% या 0.2% है, तो उसमें 50% जो है वो गारंटी ही जिम्मेदार है जो हम लोगों ने दी हुई है। जो मिस यूज़ हो रहा है या जो अपने गारंटी कार्ड दे रखे हैं मार्केट में उसको वो रिटेलर यूज़ कर रहा है, तो वो कारण है। अदरवाइज एज अ ब्लो मोल्डिंग कोई इशू है या ये इंडस्ट्री प्रोसेस खराब है, ऐसा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, भरत जी, थैंक यू, ब्यूटीफुल। सर आप लोगों ने समझाया। इनफैक्ट ब्लो मोल्डिंग्स के इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होते हुए भी मेरे को इतना अच्छे से समझ में आ गया, तो मुझे भी लग रहा है यार साथ में चालू करता हूँ ब्लो मोल्डिंग का प्लान। सर ने तो सारा समझा ही दिया, प्रॉब्लम्स बता दी, सॉल्यूशंस थोड़े बहुत मुझे मालूम है, बाकी सर ने बता दिए, सॉल्यूशंस भी बता दिए, अब तो बस प्लान लगाना है। चांदना जी को, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा चांदना जी से भी कि कुछ फ्यू वर्ड्स सर आप भी बताएं। who has conducted first meeting of Blow Molding Association. Please welcome sir. Hello everybody. देखिए आशीष जी ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बाकी हम लोग आफ्टर प्रेजेंटेशन जो है डिस्कस करेंगे। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा भी पॉइंट था और जो सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया आशीष जी ने, विच वाज इनबिल्ट स्ट्रेस वर्टिकल क्रैक, जो कि जनरली आता है मोल्ड में, हम लोग देखते भी हैं क्यों आता है। दिस इज द मेन रीजन। इनबिल्ट स्ट्रेस क्या है, थोड़ा सा एक लाइन और आप लोगों को समझा देता हूँ मेरी समझ से। जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं और मोल्ड के अंदर मटेरियल जाता है और जो उसका कूलिंग टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। ये स्ट्रेस जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन जो आप लोगों के टैंक्स टूटते हैं, वो वर्टिकली पूरे ऐसे क्रैक होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लंबे आ रहे हैं पूरे। दिस इज बिकॉज वो स्ट्रेस आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, वो इंटरनल है, मॉलिक्यूलर चेन्स के अंदर है, पॉलीमर चेन्स के स्ट्रेस है, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज बट इट इज देयर। देयर वाज अनदर आर्टिकल, जो स्ट्रेस है वो 100% एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम सोचें कि 100% स्ट्रेस हटा दें अपने प्रोडक्ट में से, चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग है, एक्सट्रूशन है, किसी में भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वी कैन मिनिमाइज इट, हम उसको कम कर सकते हैं, जैसा सर ने बोला, विद अवर प्रोसेस, विद अवर सम एडिटिव्स दैट यू कैन ऐड विद द मटेरियल। दीज आर फ्यू थिंग्स कि हम उसको कम कर सकते हैं। सर एक बात और आशीष जी ने जो बहुत अच्छी बोली, जो मैं आपको बाहर कह रहा था, कि हम जो एज अ मास्टर बैच और एज अ यूवी एडिटिव सप्लायर हम आपको एक प्रोडक्ट दे सकते हैं उसकी वर्किंग के हिसाब से, बट एज सर सेड ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने भी स्टडी के दौरान पाया कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिजॉल्व विद द प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, फेलियर एट शार्प एजेस, कर्व जॉइंट्स एंड लीड एरिया, ये एक जैसा सर ने बोला, ये मेरा भी मानना था कि मोल्ड डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई बार हम लोग ऐसा मोल्ड ले आते हैं, कई बार चाइना से जाके ले आते हैं, कोई ऐसे लेते हैं जिसका डिज़ाइन देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली क्या हमने उसका मोल्ड फ्लो एनालिसिस किया है क्या? आप लोग मोल्ड फ्लो एनालिसिस जब भी टैंक बनवाते हैं या डिज़ाइन बनवाते हैं तो इसका एक एनालिसिस होता है जो आप लोग जाके अपने जो मोल्ड बनाने वाला है या और कोई पार्टनर है उससे करवा सकते हैं। उसमें कंप्यूटराइज अपना कैड कैम वगैरह से ये पता लग जाता है कि कितने हद तक ये टैंक सही रहेगा। सर टैंक बना ले, डिज़ाइन बना लिया, यहाँ पे ले आए, चलाया, 2 महीने चलाया, टूट रहा है, बोला ये बेकार मोल्ड है, फेंक इसको। तो दिस इज वन एरिया जो आप लोग नेक्स्ट टाइम ध्यान दे सकते हैं कि जब भी मोल्ड बनवा रहे हैं थोड़ा सा एनालिसिस कर ले। डिज़ाइन इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर। नीचे से वो एजेस दे देते हैं तो वहाँ से वो टेढ़ा हो जाता है, कोई और आप फेंक रहे हैं, कहीं उसका एज निकला हुआ है, रिब्स दे दिए हैं साइड में,
तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वहीं पे क्रैक आएगा। वो जो आपकी रिब्स है या कोई ऐसा डिजाइन है आप देखेंगे जनरली वहां बहुत जल्दी क्रैक आता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। डी शेपिंग एंड वॉर्पेज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। बनने के बाद, मटेरियल बनने के बाद, टैंक बनने के बाद 2 घंटे बाद हमारे एंड पे या फिर कस्टमर के एंड पे जाके वॉर्पेज आ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि विच कैन बी रिजॉल्व विद द एडिटिव्स। Surface defects, pinholes and poor finish. Is anybody facing this kind of a problem? कोई आप लोगों में से फेस कर रहा है सर pinholes की प्रॉब्लम, कुछ surface defects वगैरह कुछ इस टाइप का? I think no one. तो extra point है, हटा देंगे इसको। Failure in ESCR, as sir said, definitely HDP का ये सर जो है वो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। बेसिकली सर ये क्या होता है आप लोगों को एक लाइन में समझा देता हूँ। ESCR इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेसिस्टेंस। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जब हमारा प्रोडक्ट रहता है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी में, जम्मू कश्मीर या ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड में, तो इस ऐसे टेम्परेचर्स के दौरान पे जब जो प्रॉब्लम आती है उसको हम ESCR बोलते हैं। तो इन्वायरमेंटल से जो स्ट्रेस पैदा होता है कंपोनेंट के अंदर, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, विच आई थिंक इन दिस केस इज नॉट वेरी रिलायबल। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसाइकिल मटेरियल, सर इस पे थोड़ा सा बोलूँगा। यूजिंग रिसाइकिल मटेरियल इज नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। हम लोग सोचते हैं यार रिसाइकिल मटेरियल यूज कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, बोलना नहीं है किसी को। आई विल टेल यू, आई वाज इन यूरोप लास्ट ईयर, सो आई वाज इन सम कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कसिंग विद आवर टीम देयर। दे टोल्ड मी, अभिषेक हमारे यूरोप के अंदर अब ये लॉ आ रहा है कि जितना भी आप वर्जिन पॉलीमर बाजार में डाल रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर, उसका 1/4 माल या 1/3 या 1/4 जो भी है, वो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको वापस मार्केट से लेना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा देना पड़ेगा। तो जब यूरोप के अंदर व्हेन अ गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉ कि आपको लेना है और रिसाइकिल यूज करना है, तो यूजिंग रिसाइकिल मटेरियल इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई पर्सनली फील नाउ, नोइंग कि मैं क्या मटेरियल यूज कर रहा हूँ इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी एक कबाड़ का मटेरियल है जिसका मेरे को टेंसाइल नहीं पता है, उसकी इलॉन्गेशन नहीं पता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता है कि कैसा परफॉर्म करने वाला है, और उसको उठा के आंख बंद के डाल दिया। सर दिस इज द प्रॉब्लम। नोइंग व्हाट यू आर यूजिंग इज द एक्चुअल फंडामेंटल अबाउट रिसाइकिल मटेरियल। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग यूज क्या कर रहे हो। तो दिस वाज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग इंडस्ट्री जो है हमारी, हम लोग बहुत रिसाइकिल मटेरियल यूज करते हैं। आप लोग बम्पर्स जो देखते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मारुति 800 इस प्राइस में है और आपको पूरा वर्जिन मटेरियल के अंदर बम्पर मिल जाए, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो क्या है, लेकिन वो टूटता भी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी खराब नहीं है, वो तो कोई 1-2 साल में नहीं टूट जाता। बम्पर तो जब तक रहता है तब तक चलता है। तो वो क्यों चलता है? बिकॉज उन लोगों ने बहुत स्टडी करा गया। हम लोग सर लिटरली सारे टेस्ट करते हैं। आई एम वन ऑफ द कंपाउंडर्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मैं ये कंपाउंड्स बनाता हूँ सारे। तो हम लोग जब ये यूज करते हैं, एंड दिस इज ऑफिशियली अप्रूव्ड विद द OEM, ऐसा नहीं होता है। और बाहर भी ऐसा होता है, यूरोप में, US में, सब जगह। तो जब हम यूज करते हैं बस थोड़ा सा ध्यान दें कि हम कैसा है, थोड़े स्टैंडर्ड्स हम लोग अपने बना लें। रिसाइकिल मटेरियल में अगर कुछ कमियां हैं तो आप एडिटिव से पूरी कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज लेना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ एडिटिव्स डाल दिया, एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आप लोगों कुछ लोगों को पता होगा, तो पॉलीमर जब चलता है बार बार हीट लगती है, जितनी बार मटेरियल में हीट लगेगा वो थोड़ी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है जो आप अपने मास्टर बैच वाले के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं यार ये मेरा प्रोसेस है, मैं ये करना चाहता हूँ। वो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देगा जो आप उससे लेके डाल सकते हैं, एंड यू कैन रिटेन द प्रॉपर्टीज। आप लोग ब्लो मोल्डिंग करते हैं, उसके अंदर जब एक्सट्रूशन होके आता है नीचे, तो अगेन वो जितना लंबा टैंक होगा, जितना ज़्यादा बड़ा टैंक उतनी ज़्यादा टूट, उसमें टूट ज़्यादा हो रही है, छोटे टैंक में कम हो रही है। अगेन द सेम रीजंस गोज, जैसा सर ने बोला, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हम कैसे कम करें उस पर वर्क कर सकते हैं। सो वी हैव सम सोल्यूशन फॉर दैट, जो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे कि स्ट्रेस हम कैसे कम कर सकते हैं, वॉर्पेज कैसे कम हो सकता है। UV of course is one of the main factors जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कम करेंगे। So moving quickly to the next slide, Jyoti. Before I move to my product कि मेरे पास क्या solution है। सर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया, सर ने भी बड़े अच्छे से विस्तार में समझाया।
एक कुछ यूवी के अंदर जो मुझे ऐसा लगता है अभी प्रॉब्लम है इज द कन्वेंशनल प्रोडक्ट। हम लोग 21st सेंचुरी में है, आज मोबाइल के ज़माने में हर तीसरे महीने नया मॉडल आता है, पर हम प्रोडक्ट जब अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें अगर यूवी डालना होता है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 8 साल 10 साल पहले बना हुआ एक प्रोडक्ट जो कि बना था किसी एक एप्लीकेशन के लिए बना था। ऑफ कोर्स वो उस जमाने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, इट वाज द मर्सिडीज ऑफ इट्स टाइम, बट नॉट नाउ। अब तो फरारियां आ गई हैं। तो सेम इज विद यूवी, अभी थोड़ा सा एम्बेसडर काइंड बनता जा रहे हैं। सो दीज आर द कन्वेंशनल प्रोडक्ट। 783 एक प्रोडक्ट है, 770-944। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा ये प्रोडक्ट्स, आई एम वेरी श्योर, अगर आप लोग यूवी यूज कर रहे हैं सर। तो जब आप मास्टर बैच वाले से यूवी मांगते हैं तो वी एज मास्टर बैच सप्लायर हम यूवी नहीं बनाते हैं, हम कंपाउंड करते हैं। हम भी यूवी खरीदते हैं, यूवी खरीद के उसके साथ और एडिटिव्स मिलाते हैं, 7-8 प्रोसेसिंग एओ ये सब मिलाते हैं, वो बना के एक कॉम्बिनेशन आपसे ये समझ के कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाते और देते हैं। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर। लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो पुराने यूवी होते थे, अभी आप लोगों में से सर कुछ लोग होंगे जो यूवी यूज भी कर रहे हैं पर फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी डिग्रेडेशन हो रहा है। आप कह रहे हो यार कुछ लोग तो वो तो यूवी डाल नहीं रहे तो चलो प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट मैटर, डजंट मेक अ डिफरेंस। कुछ लोग हैं जो वो यूवी भी डाल रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी क्रैक आ रहा है, फिर भी टूट रहे हैं। सो दिस इज फ्यू ऑफ द रीजंस फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग यूवी। सर एक तो आपका यूवी है जो वो थोड़ा पुराना हो चुका है, तो पुअर एंड शॉर्ट टर्म वेदरिंग। वो यूवी है, वो यूवी स्टेबलाइज भी कर रहा है, पर वो कितने दिनों तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। कह रहा हूँ यूवी है, चलेगा, आप टेस्ट भी करो, लैब में भी टेस्ट कराओ, ऑफ कोर्स यूवी तो यूवी है, लेकिन परफॉर्मेंस उसका क्या आने वाला है? अर्ली फेलियर, दिस इज द रीजन। यूवी चलता है साल 2 साल 3 साल, उसके बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब आप यूवी की ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो यूवी की डोजिंग बढ़ा देता हूँ, तो यूवी की डोजिंग जैसे अगर आज 2% डाल रहा हूँ, कल को 4-5% डाल देता हूँ तो वो 5 साल 7 साल चल जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी भी चीज की मात्रा एक हद से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। सर ऑलवेज अंडरस्टैंड, पॉलीमर एक फैमिली है, आप उसमें कलर मास्टर बैच डालो, यूवी डालो, एंटीऑक्सीडेंट डालो, कुछ भी डालो, आप उसमें एक फॉरेन पार्टिकल भेज रहे हो, मतलब वो उसकी फैमिली का नहीं है। आज पॉलीमर चेन होती है, एचडीपी है, कलर मास्टर बैच उसकी फैमिली का नहीं है, यूवी उसकी फैमिली का नहीं है, तो ये सब आके क्या करते हैं, उसके जो केमिकल चेंज होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से किसी भी चीज का एक्सेस इज नॉट अलाउड। आप 10% मास्टर बैच यूज कर रहे हो, इट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। 12% 15% कर रहे हो, यू शुड नॉट। सो बेसिकली आपको जो मास्टर बैच है वो भी एक लेवल से ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज खराब करता है पॉलीमर की। पुअर एंड कलर प्रॉपर्टी रिटेंशन, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। पुराने जो यूवी होते हैं वो आपका, जब आप यूवी डालोगे अलग से, मास्टर बैच डालोगे और पॉलीमर में, तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्चुअल व्हाइट आपने कुछ और बनवाया, साथ में यूवी एओ डाला, हल्का सा वो येलो टोन पे चला गया या कहीं और चला गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कन्वेंशनल यूवीज, पुराने यूवी से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस यूवी के साथ, ये खाली यूवी देता है। पुराने यूवी, जो पुराने प्रोडक्ट से यूवी होते थे, खाली आपको एक यूवी दे रहे हैं, बट यूवी खाली अकेला is not sufficient. You need much more thing. You need a package. एक खाली यूवी से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। जो डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक खाली यूवी नहीं खत्म कर पाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंगल प्रोडक्ट विच डज नॉट डू दी मल्टीटास्किंग। तो हमको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो 3-4 चीजें एक साथ कर दे। Why I'm saying this? Because this is the solution I am coming to. मैं आपसे 7-8 चीजें अलग अलग नहीं डलवाने वाला हूँ। Higher loading cause violation of FDA norms. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप पुराने यूवी यूज करते हो, अगर आप उसको ज्यादा डोसेज में यूज कर लोगे तो वो एफडीए से बाहर हो जाता है, तो नहीं यूज कर सकते। हायर डोसेज कॉजेज ब्लीडिंग, कलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप एक हद से ज्यादा यूवी या कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट लाइक टाइप ऑफ मास्टर बैचेस। सर यहाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का। मास्टर बैचेस क्या है? हम समझते हैं लाल है, काला है, हरा है, नीला है, सारे मास्टर बैच है। यूवी आ गया, ये भी मास्टर बैच है। एओ डाल दिया, ये भी मास्टर बैच है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मास्टर बैच को 4-5 भाग में बांटा गया है। व्हाइट मास्टर बैच विच इज डजंट कम इनटू कलर, देन देयर इज अ ब्लैक मास्टर बैच, देन देयर इज अ कलर मास्टर बैच, रेड ग्रीन ब्लू एवरीथिंग, उसको कलर मास्टर बैच बोलते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फंक्शनल मास्टर बैच। फंक्शनल मास्टर बैच आर दी परफॉर्मेंस ड्रिवन। इनका एक फंक्शन है, आप उसको यूज कर रहे हो तो उसका वो फंक्शन आना चाहिए। अगर वो फंक्शन नहीं आ रहा तो वो मास्टर बैच बेकार है।
तो कलर मास्टर बैच बेसिकली कलर देता है, इट इज फॉर कलरिंग, बट फंक्शनल अब हम आए यूवी स्टेबलाइजेशन, यूवी स्टेबलाइज आना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल, ये अगेन आपको जर्म्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है, तो अगेन इट्स अ फंक्शनल मास्टर बैच। फोमिंग प्रोडक्ट को बढ़ाता है, अगेन अ फंक्शन। सिंक, एंटी सिंक मास्टर बैच, सिंक खत्म करता है, अगेन अ फंक्शन। So these are functional master batches. What is processing master batches? This is important to understand. ये UV वगैरह भी आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने सुने हैं, इसको फंक्शनल बोलते हैं। अब इसके अलावा है प्रोसेसिंग मास्टर बैच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों की अभी जो प्रॉब्लम है, जैसा सर ने भी बताया, इट इज मोर रिलेटेड टू प्रोसेसिंग। इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो हुई, हम भी सीख रहे हैं, इंडिया इज ग्रोइंग, हम लोग भी वी आर द पार्ट ऑफ द यंग ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, तो सीख रहे हैं, नई नई चीजें लाते हैं, जल्दी भी करना है तो लाने के चक्कर में ऑफ कोर्स 4-5 चीजें भूल भी जाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर टू दैट कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक हम लोग इससे खत्म कर सकते हैं। बट अगेन ये जादू की पुड़िया नहीं है, सारे प्रॉब्लम नहीं खत्म हो सकते सर इससे भी। प्रोसेसिंग की दिक्कत कुछ हद तक आप लोगों के लिए खत्म कर सकता हूँ, बाकी की तो डेफिनेटली मैं भी बहुत बार अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ, प्रॉब्लम आती है, ये कहते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई हैव माय टेक्निकल हेड R&D हेड मिस्टर रवि सिंह आल्सो हियर। तो जब भी हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं सर प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहा अच्छा चलो चलते हैं, मशीन पे खड़े होते हैं, कोई ना कोई तो दिमाग लगेगा, कोई ना कोई वो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी लगाते हैं, स्कूटर टेढ़ा किया, सीधा किया, किक मारी, स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ कुछ वो भी कर लेते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सर करना पड़ेगा आप लोगों को भी जाके। एक छोटा सा टॉपिक है ब्लैक मास्टर बैच, व्हाई सम टैंक्स आर ब्लैक इन कलर। ये एक सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रोटो के अंदर जो है ब्लैक कलर यूज होता है और ब्लैक मास्टर बैचेस हम लोग यूज करते हैं। देयर इज अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय आवर टीम, वी हैव अ इंटरनल टीम इन द कंपनी व्हिच वी हैव नेम्ड एज टीम इनोवेशन। तो ये एक हमारी जो छोटी सी एक टीम है जो कि इनोवेशन और R&D पे काम करती है, उन्होंने ये छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है जो मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल होगा आज आप लोगों को। 5 मिनट लूंगा सिर्फ। तो जनरली व्हाई सम टैंक्स आर ब्लैक इन कलर, जब हम टैंक बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमको क्या कलर चाहिए, ये हम सोचते हैं कि यार बाजार का डिमांड क्या है, दिस बेसिकली ड्राइव्स द कलर ऑफ द टैंक, एप्लीकेशन एंड ऑफ कोर्स द कॉस्मेटिक। अब काला होता है, कई लोगों के दिमाग में भी होता है नहीं यार काला छत पे नहीं रखना, ऑस्पिशियस नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो प्रोबेबली ये मार्केट का डिमांड होगा कि नहीं चाहिए। एप्लीकेशन, जब टैंक बनाते हैं तो काला इसीलिए यूज होता था और अभी भी यूज होता है बिकॉज कार्बन ब्लैक और द ब्लैक मास्टर बैच इज नॉट द मास्टर बैच। जो आप लोग समझते हैं कि काला काला मास्टर बैच है, वो मास्टर बैच नहीं है, बल्कि ब्लैक इज अ यूवी स्टेबलाइजर। जो ब्लैक कार्बन होता है वो बेसिकली ओरिजिनली एक यूवी स्टेबलाइजर है जो कि माइनिंग से हम लोग को नेचुरल मिलता है। इट्स अ नेचुरल यूवी स्टेबलाइजर। बाकी जितना यूवी स्टेबलाइजर है वो हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं, ये एक ऐसा यूवी स्टेबलाइजर है जो भगवान ने बना के दिया है कि भैया ये लो और यूज करो। अब ठीक है काले रंग का है तो साथ में प्रोडक्ट काला भी हो जाता है और हम इसको यूज कर लेते हैं। एवरी यूवी स्टेबलाइजर हैज अ लाइफ, सबकी एक लाइफ होती है तो इसकी भी एक लाइफ है। तो कमिंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा नीचे करियो, ये ऐसा क्यों होता है फटाफट समझाऊंगा, आप लोगों को समझ भी आएगा। कार्बन जो होता है इट इज बेसिकली एलिमेंटल कार्बन, जैसे ग्रेफाइट होता है और डायमंड होता है। ग्रेफाइट डायमंड अपने को पता है हार्डेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड के, तो वैसे ही कार्बन भी वैसा ये उनके साथ निकलता है। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े इसके डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज जनरली यूज्ड इन रोटो मोल्डिंग और अब्रॉड अगर आप देखेंगे तो ब्लो में भी लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, चाइना में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, यूएस में, यूरोप में। मैंने अपने पार्टनर से पूछा तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि अभिषेक ब्लो में हम लोग ब्लैक भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं अभी यूरोप के अंदर। तो व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन एज आई सेड कि कार्बन ब्लैक इज अ पिगमेंट, कार्बन ब्लैक इज अ फिलर एंड कार्बन ब्लैक इज अ यूवी एब्जॉर्बर। थोड़ा सा नीचे आ जाए। ऑल मटेरियल्स whether it is rubber or steel or plastic, सब कोई हीट एब्जॉर्ब करते हैं। Sir, I welcome both of you. Supremo Indore. I would request if you can just introduce yourself, please. Rajiv Agrawal, Supremo Water Tank Indore. And one more, Mundra ji. Welcome, sir. स्टेज तो यही संभालते हैं हमारा। Morning everybody, I am Rajesh Gindodia from King's Water Tank, Dhulia, Maharashtra.
So a very warm welcome to you. Mundraj here also. Nawal sir. Hi sir. Your partner. Suresh Nawal, campus Indore. So a very warm welcome to our guests who have just joined us. तो सर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंटेशन में थोड़ा आगे निकल चुके हैं. तो वेदरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, कोई भी मटेरियल हो, चाहे लोहा हो, चाहे रबड़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, सब पे सनलाइट पड़ती है, सब सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सनलाइट से डिटोरिएट हो जाते हैं. स्टील डिटोरिएट नहीं होता, पूरे दिन धूप में पड़ा रहता है. प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके डिटोरिएट हो जाता है. सो व्हेन वी आर रिलेटेड टू प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं तो ऑफ कोर्स हमको मालूम है कि ये प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम है कि वो डिटोरिएट हो गई होगा. तो वंस द सनलाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलीमर, तो वो उसका डिग्रेडेशन चालू कर देता है. दिस इज अ लिटिल डायग्राम विच शोज कि पॉलीमर की चेन पहले ऐसे थी, फिर इस पे सनलाइट रेडिएशन पड़ा, यूवी लाइट्स पड़े, एंड दिस लीड्स टू फोटो डिग्रेडेशन. This is called photo degradation. Photo degradation is also known as the degradation or the degradation due to sunlight, UV light, and this is this. So in order to protect the outdoor plastic products from UV light, we need something. Sir, ऐसा नहीं है कि अपनी टैंक ले लिया और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला रख दिया सब जगह कि यार UV लाइट से बच जाएगा. Which is practically not possible कि सबको टैंकी के साथ एक छतरी भी दे रहे हैं, भाई ऊपर लगा लियो, क्रैक नहीं होगा. Practically possible नहीं है. तो हमको एक ऐसा चीज चाहिए जो हम अपने इनबिल्ट अपनी फैक्ट्री से डाल के भेजें इसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं हो. कार्बन ब्लैक इज एन आंसर फॉर दैट. कार्बन ब्लैक इज ऑफ कोर्स अ यूवी स्टेबलाइजर, अ नेचुरल यूवी स्टेबलाइजर. दिस वाज द रीजन कि वो रोटोमोल्ड में यूज होता था. अभी भी अगर आप लोग थोड़ा सा रिकलेक्ट करेंगे तो अगर आप लोग ब्लो मोल्ड में भी ब्लैक टैंक्स बनाते हैं तो सर आप लोगों को रिजेक्शंस बहुत कम मिलेगी कंपैरेटिवली. अगर आप वाइट बना रहे हैं सेम मोल्ड पे, मेरे एक जेंटलमैन से बात हो रही थी अभी 2 दिन पहले, मैंने उनकी फैक्ट्री विजिट करी, तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये ना मोल्ड बेकार है, इस मोल्ड में बहुत रिजेक्शन है, बहुत वापसी है. मैं बोला अच्छा सर क्या कलर चला रहे हो? बोले यार वाइट चला रहे हैं. मैं बोला अच्छा ठीक है. बोले यार ये मोल्ड बेकार है. तो मैंने बोला सर इस पे आपने कभी और कोई कलर चलाया है? बोले हाँ यार चलाया तो है. मैं कहा सर ब्लैक चलाया था कभी? बोले हाँ चलाया था. बोले सर रिजेक्शन क्या थी? बोले अरे यार रिजेक्शन तो नहीं थी. मैं बोला सर फिर मोल्ड की प्रॉब्लम थोड़ी है, आपने ब्लैक चलाया रिजेक्शन नहीं थी, व्हाइट चलाया रिजेक्शन आ गई, मोल्ड को क्यों दोष दे रहे हो? तो समटाइम्स दिस इज आल्सो अगेन एज सर सेड कि एनालिसिस ये हम लोगों को ऑफ कोर्स करना पड़ता है कई बार कि यार रिजेक्शन किस वजह से हो रही है. तो द टिपिकल फेलियर, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे. यूवी रेज आती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं. हीट में कन्वर्ट होकर वो पॉलीमर से निकल जाती है, जिसको डिग्रेडेशन करना होता है, जो भी चोट पहुंचानी होती है वो पहुंचाता है, बाकी हीट की एनर्जी में बन के निकल जाता है. नाउ देयर इज फ्यू कलर्स जिसका एक हम लोगों ने टेस्ट किया है. थोड़ा सा जो नीचे करिए. दिस आई विल शो यू हाउ द कलर्स परफॉर्म इन मंथ्स एंड इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू यूवी. सो दिस टेस्ट वाज डन इन एरिज़ोना यूएस में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूवी लाइट पड़ती है. तो जितने भी यूवी के टेस्ट होते हैं वर्ल्ड ओवर वो सर इसी जगह पे होते हैं, एरिज़ोना में. साइट वगैरह लेनी पड़ती है, हमारी कंपनी ने भी ले रखा है, और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो ऑटोमोटिव कंपनीज है बड़ी बड़ी उनके लिए टेस्ट करते रहते हैं. ये रेगुलरली करते हैं हम लोग. वी डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेस्ट. तो कल को अगर हम आपके साथ भी काम करते हैं, जुड़ते हैं और कोई प्रोडक्ट देते हैं तो सर ब्लाइंडली कभी भी हाँ नहीं भरूंगा, कोई प्रोडक्ट बिना टेस्ट के नहीं दूंगा. दिस इज the main thing of the company, और टेस्ट कराते हैं. तो ये we will see with this presentation. जब हम लोगों ने थोड़ा सा और नीचे कर दिया, ये तेरा presentation वाले को चला नहीं है. अरे ये देखना नीचे जो आ रहा है. अच्छा ये उस पे नीचे. So we see थोड़ा सा we have this natural color. अगर हम टैंक को एग्जाम्पल लेते हैं अपने टैंक का, अगर हम नेचुरल कलर में मोल्ड करते हैं और दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हमने एक्सपोजर दिया यूवी का, विद इन 6 महीने में ये टैंक का जो स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या इलॉन्गेशन, आई होप मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, वो 6 महीने में टूट के 1000 पे आ गया. व्हेन इट वाज नेचुरल, जब उसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ था. फिर हमने उसमें जब TiO2 डाला, व्हाइट मास्टर बैच डाल के बनाया, अगेन 12 महीने के अंदर टूट गया.
विच शोज कि कोई भी कंपोनेंट, वेदर टैंक हो, इंजेक्शन मोल्डिंग का कंपोनेंट हो या कुछ भी हो, अगर वो नेचुरल कलर में बना है तो वो 6 महीने में टूटेगा, अगर वो वाइट के साथ बना है तो वो 12 महीने में टूटेगा। दिस इज जब आपका प्रोडक्ट विद खाली वाइट मास्टर बैच है और कुछ नहीं डाला हुआ है। व्हेन वी यूज 1% ऑफ ब्लू, दिस इज सेम एज टिटेनियम। जैसे जितना जल्दी व्हाइट टूटता है उतना ही जल्दी ब्लू भी टूटेगा। ये कलर की प्रॉपर्टी है, तो दिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वैसे ही अगर हम कैडमियम येलो डालते हैं, अगर आप सबसे ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर, सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ब्लैक, कार्बन ब्लैक जो है वो जब आपने यूज किया तो 30 महीने के बाद तक भी टेंसाइल नहीं टूटी है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। देयर इज अ वेरी मिनिमल डिफरेंस, 200-300 पॉइंट टूट गया। तो विच शोज बेसिकली कार्बन ब्लैक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट यूवी स्टेबलाइजर है, नेचुरल यूवी स्टेबलाइजर। इसके साथ आपको यूवी वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल अगर आप चाहो तो ये चल जाएगा, नहीं। देन आफ्टर दैट डेफिनेटली अगर 15-20 साल चाहिए तो हमको थोड़ा सा उसमें यूवी या कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। Excuse me, you have shown that TiO2 is a very bad performer. यूवी की लाइफ Yeah. You have shown that TiO2 at 1% is like one of the worst performers, is almost as bad as a natural color. Yes. But what if TiO2 goes up to, let's say, 3-4%, 5%? Sir, okay, we have done the comparison keeping everything at 1%. So basically what we want to show you is the color strength of a particular color. मैंने सबका एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैंने सबको एक परसेंट में डाला, सबके ऊपर एक समान सनलाइट डाली और फिर मैंने उनका डिटोरिएशन स्टडी किया। तो हमको ये स्टडी में आया कि अगर हम वाइट यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज 1% और 5% और say 70% TiO2 loading and probably 1% on the surface or 2% on the surface, so definitely अगर वो खाली वाइट है तो डिटोरिएट होने वाला है। अगर आप लोग ये बना रहे हो, अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है, सर प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स आज नहीं आ सकती है, 12 महीने बाद आएगी। मैं यहाँ 12 बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल। ये हमने टेस्ट किया, रात भी होता है दिन भी होता है, रात को सनलाइट नहीं होती है तो -2 आवर्स, वो उतने घंटे आप माइनस कर लो तो खाली उसको। अच्छा, उसके बाद टैंक पड़ा कैसे है, कितनी धूप फॉल कर रही है, कोई टंकी आ गई उसके पीछे पड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट टैंक टूटेगा जरूर। अगर वो व्हाइट में बना हुआ है, खाली व्हाइट में या खाली ब्लू में बना हुआ है तो भी टूटेगा। कब टूटेगा? मेरे हिसाब से 12 महीने के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नीचे आती है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक है, अगर यहाँ पे ये 4500 दिखा रहा है तो एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर वो 50% से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बेकार, आपका प्रोडक्ट टूटेगा। तो दिस इज सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर एट द मोमेंट, कि कलर उड़ जाता है, कलर चला जाता है। तो वाइट की अगर हम बात करें तो वाइट तो उड़ेगा, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेशन चालू हो जाएगी यूवी की। वेयर एज अभी ये सर हम यूवी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि यूवी Is it color or is it UV? You are using both the words. Sir, this is for the color. This is for the color. Yes. So as I said, in that case, it's not Arizona. What we are talking of, Arizona would be of UV reference. It is in Arizona, in US, but this is done for the colors. This is not for the polymers. तो कलर जैसे मैं बता रहा था कि जो कलर जब हम यूज करते हैं, अगर आप ब्लैक यूज करते हो तो आपको यूवी की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि जब हम रोटो मोल्डिंग में ब्लैक चलाते हैं और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे वो रोटो मोल्डिंग हो चाहे वो ब्लो मोल्डिंग हो, अगर ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम कम से कम होगी फॉर अ पर्टिकुलर रीजन फॉर यूवी। फॉर पर्टिकुलर आई कंपेयर इट विद यूवी, यूवी के लिए प्रॉब्लम कम से कम होगी। बाकी स्ट्रेस वगैरह या और कोई चीज है वो तो सर अलग प्रोसेसिंग रिलेटेड है। यूवी से रिलेटेड जो हम बोलते हैं ना कि यूवी की वजह से टैंक टूट गया, तो अगर वो ब्लैक कलर में आप लोग यूज कर रहे हो तो सबसे कम प्रॉब्लम होगी, व्हाइट में यूज कर रहे हो तो सबसे ज्यादा होगी, एंड देन गोज बाय। एक चीज आप लोग देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कार्बन ब्लैक के साथ एक प्रोडक्ट और है आयरन ऑक्साइड, ये भी इक्वली उतना ही परफॉर्म करता है। तो अगर आप लोगों को ब्लैक के अलावा, आप लोग को लगता है यार ब्लैक यूज नहीं करना, लोग समझते हैं मार्केट में चलेगा नहीं, क्योंकि हम कलर कैसे डिसाइड करते हैं, अगेन मार्केट डिमांड के हिसाब से, बाजार में क्या चाहिए। ब्लैक यूज करेंगे, सब बोलते हैं यार पूरा कचरा मिला रखा होगा ब्लैक के अंदर, ब्लैक नहीं यूज करना है। देयर कैन बी अनदर सोल्यूशन, आयरन ऑक्साइड। दिस इज द कलर, दिस इज अगेन अ नेचुरल कलर, दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। You do not need to add UV. This means what? This can give you some good life to your product, but this product is very pale in color. बहुत फीका सा कलर होता है,
So I don't know कितना चलेगा. Terracotta. Yes sir. Yes, definitely. कोई एक डेफिनेट रिजल्ट ना दे पाऊँ तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार पता नहीं क्या प्रेजेंटेशन थी, समझ भी नहीं आया प्रोडक्ट का. जो नेक्स्ट व्हाट आई टेल यू एंड आई टेल यू द रीजंस दैट व्हाई वी हैव दिस प्रोडक्ट और वाकई में वो कैसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को. सो वी हैव अ प्रोडक्ट, वी हैव named it as Mundra Combi Solutions. We call it as Mundra Combi Solutions. It's basically not a master batch, it's a combi master batch. So it's a combination of lot of additives put together, keeping in mind the problems that you all are going through.
Now this one product cannot work for all of you. The product will remain same, Mundra Combi Solutions, but this does not mean कि मैं ये product आप लोग सबको दे दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है सर, जो आपकी प्रॉब्लम है वो इनकी नहीं है, जो इनकी प्रॉब्लम है वो उनकी नहीं है, तो आप लोग सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, आपको 4 है, उनको 6 है, उनको सिर्फ एक ही है. So basically when we talk about master batch, जो जनरली इंडिया में लोग करते हैं, जो मैं देखता आया हूँ, एक ही मास्टर बैच उठाया, सबको धड़ाधड़ एक ही इंडस्ट्री पकड़ी, ब्लो में पकड़ा, देखा ये है, सबको एक ही मास्टर बैच दे दो. अरे यार उसकी प्रॉब्लम तो समझो, पहले उसको चाहिए क्या वो तो देखो. और आप लोग भी जब किसी भी मास्टर बैच वाले से, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई भी मास्टर बैच वाला जिससे भी आप लोग लेते हैं, सर इंडिया में हर आदमी आज की डेट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मास्टर बैच बना रहा है. हम रोज नई चीजें सीख रहे हैं. इंडिया मास्टर बैच इंडस्ट्री हो, ब्लो इंडस्ट्री हो, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है. तो अगर आप लोग अपने भी पार्टनर से बात करोगे, मास्टर बैच सप्लायर से, तो वो आपको सोल्यूशन जरूर दे पाएगा या बता पाएगा, और you can have the solution. So we have a Mundra Combi solution. We call it all-in-one master batch. पॉलीमर लेते हैं, कलर लेते हैं आपकी पसंद का. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वेयर वी कम. यूवी की प्रॉब्लम है, यूवी ले लेंगे. यूवी कैसे ले लेंगे? ऐसे नहीं सर, आपने बोला 10 साल चाहिए. मैं कह रहा हूँ जब आप लोग यूवी की बात करते हो, सीधा ऐसे मत बोलिए 10 साल के लिए चाहिए मेरे को यूवी, 5 साल के लिए चाहिए, 8 साल के लिए चाहिए. सी, विद एवरी ईयर यू इंक्रीज योर कॉस्ट. When I talk about a solution, solution does not mean कि मैं आपको एक रॉकेट का पार्ट उठा के लाके दे दूं और मारुति की गाड़ी में लगा दूं और बोल दूं ले यार ये सोल्यूशन हो गया मारुति, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व, अब तू बेच. हाउ विल ही सेल? वो बेचेगा कैसे यार? वो पार्ट इतना महंगा है, वो 2 लाख की गाड़ी को 6 लाख का बना दिया, वो बिकेगा ही नहीं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सोल्यूशन, whenever wherever you talk about a solution किसी भी एक प्रॉब्लम का, वो सोल्यूशन एक दायरे में होना चाहिए. वो दायरा हमारे पास क्या है? कॉस्ट. एज आई अंडरस्टैंड इन द इंडस्ट्री, हम एक सोल्यूशन कुछ हद तक ला पाए, कॉस्ट भी मैच कर पाए, प्रोसेसिंग भी कर पाए. तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, व्हेनेवर यू आस्क फॉर यूवी, आप हमेशा देख के लीजिए आपको कितनी देंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 to 5 years. Getting UV for 3 to 5 years is very easy. If I श्रवण इसको थोड़ा सा आगे करोगे बोर्ड को. 3 साल 5 साल का यूवी सर फिर आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है. बट जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट 10 years, Hi sir, we welcome you for the presentation. We have started long back. I'm sorry, probably we can share the presentation with you later. आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेंगे. सर का नाम वेलकम कर दो. साकरे जी औरंगाबाद. Sakre ji Aurangabad. Mr. Sakre ji has just joined us. I'm Sakre from Aurangabad, Sarita Water Tank. Very warm welcome, sir. So, sir, I was telling you about the UV. We will discuss a small thing here because ये आप लोगों को ना कॉस्ट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा. जब हम UV की बात करते हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स. जब हम अपना टैंक बना रहे हैं, ये 3 लेयर है. अब क्योंकि हम लेयर्स में बना ही रहे हैं और हमको बनाना भी आगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 लेयर भी आएगा. मार्केटिंग है सर, सबको प्रोडक्ट बेचना है. अब जब ये 3 लेयर है, ये बाहर, ये दिस इज द आउटर लेयर. सर थोड़ा इधर कर, थोड़ा सा और आगे कर दो तो दिखेगा. या सर, दिस इज द आउटर लेयर, this is middle, this is inner. Now to UV stabilize, अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि एक outer layer है, इसको UV करते हैं, इसको UV stabilize किया, and then we just think about this and we let the things go by. But this generally does not work for a longer life. If you are looking for something like when you people are talking about 20 years, जब आप 20 साल की बात कर रहे हो, सर 5 साल 7 साल ठीक है, जब 20 साल आप ये भी तो देखो आप कितनी लंबी बात कर रहे हो. When we have to talk about 20 years of life, then definitely we need a solution which takes care of these 2 layers also. ये कितने दिन चलेगा? ये एक अकेला लेयर कितने दिन काम कर पाएगा? बहुत, अगर मैं एक लेमैन और कॉमनली आप लोगों से भी पूछूं, सर आपने 3 लेयर में बना दी, ये बेचारा 1 mm का है, ये दोनों भी तो 1 mm के हैं, और सारा भार हमने इस पे डाल दिया, बाहर वाली लेयर पे, कि भाई तू सारा काम कर. हाउ इज दैट पॉसिबल? इसको हमने यूवी स्टेबलाइज कर लिया, आपने अच्छा यूवी भी यूज कर लिया. इट इज नॉट सुटेबल फॉर 20 years. yes, for 5 years हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूवी स्टेबलाइज कर रहे हैं और हम अपनी डिग्रेडेशन, ये जो सनलाइट है, हम बेसिकली इसको डिले कर रहे हैं अगले 3 साल 5 साल के लिए, कि 4 साल 5 साल तक तो ये बचा लेगा, उसके बाद ये दोनों तो टूटने ही टूटे हैं. एंड
the breakage in these two layers is much faster. अगर एक बार आपने इसको UV किया और ये आपकी लेयर टूट गई तो बाकी दोनों लेयर जो है वो बहुत जल्दी टूटेगी. वो क्यों टूटेगी? The reason is because once this goes in, यहाँ पे सर हम लोग जनरली ब्लैक यूज करते हैं एंड बिकॉज ब्लैक कंपाउंड और थोड़ा सा रिसाइकिल भी मिला लेते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट रिसाइकिल हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट. सो डोंट वरी, रिसाइकिल में इसका कोई लेना देना नहीं है. बट हाँ, जब हम रिसाइकिल यूज करते हैं तो थोड़ा सा हम 7 साल की बात करनी है. सिंगल लेयर इज गुड इनफ, वी कैन डिजाइन अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड. बट येस, डेफिनेटली अगेन एज आई सेड, मैं गारंटी उतनी ही दूंगा जितना मैं टेस्ट करूंगा. मैं सारी चीजें टेस्ट करूंगा. आई कैन वर्क इंडिविजुअली विद ऑल ऑफ यू. वी कैन सी आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि प्रोसेस अलग है, हर आदमी का बनाने का तरीका अलग है, मोल्ड के डिजाइन अलग है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. और सर सेकेंडरी ऑफ कोर्स, जैसा सर ने भी बोला था कि मोल्ड का जो कंपोनेंट है उसकी थिकनेस वो बहुत डिपेंड करती है. क्योंकि यूवी भी हमेशा जो है, जब भी हम यूवी स्टेबलाइज करते हैं किसी कंपोनेंट को, हम हमेशा पूछते हैं सर आपकी थिकनेस क्या है. अब आप कंपोनेंट बना रहे हैं, आपकी थिकनेस ही वेरी हो रही है बार बार, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम. इसमें यूवी भी कुछ नहीं कर पाएगा. आपकी थिकनेस बननी थी 1 mm की, आपने बना दी बाहर वाली आधे mm की. अब यूवी क्या करेगा? वो जितना पहुंचना था, एक तो उससे वैसे ही बेचारा आधा हो गया, ऊपर से आपने बाहर की लेयर को भी आधा कर दिया, उसको भी ध्यान नहीं दिया. उसके बाद आप बोलो मास्टर बैच वाले भाई तेरा ये तो फेल हो गया यूवी. तो द पॉइंट इज कि सर उसमें भी ध्यान दे रहा है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हमारी लेयर भी प्रॉपर नहीं बनेगी, दिस विल बी अ प्रॉब्लम. मूविंग फॉरवर्ड, इसको हटा देना. We will talk about the benefits of Mundra Combi Solutions. The product that we have made, what are the benefits out of it? You get a broad processing window. What is broad processing window? When we talk about कि क्या है processing में क्या क्या problem आती है. So this is one of things, sir, temperature resistance. जब आप लोग चलाते हो, बैरल बड़ा है, उसको काफ़ी ट्रैवल करना होता है. जितना बड़ा आपका टैंक उतना बड़ा आपका बैरल, उतना बड़ा मटेरियल को ट्रैवल करना है हीट में से. जितना वो ट्रैवल करेगा, एक बार पहले पॉलीमर वाले ने पॉलीमर बनाया तो उसने अपनी मशीन में हीट दे दी, चलो उसने एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए, उसका काम हो गया. उसने उतने भी डाल दिए कि आपके पास आगे भी ठीक चलेगा. फिर आपने जब यहाँ पे बनाया तो आपने टैंक बना लिया, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीमर वाले ने डाले हुए थे, तो आपके एंड पे तो ठीक चल गया. नाउ व्हाट अबाउट द फील्ड? जब वो फील्ड में जा रहा है तो धूप से उसको कौन बचाएगा जब वो हीट जनरेट होगी? क्योंकि जो यूवी लाइट पड़ रही है, मैंने आपको बताया था यूवी लाइट हमेशा हीट में कन्वर्ट होती है एनर्जी, और हीट में कन्वर्ट होके वो निकलती है. तो वहाँ जो हीट डेवलप हो रहा है, हाउ टू सेफगार्ड दैट? सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन विद आवर प्रोडक्ट. इट गिव्स यू ब्रॉड प्रोसेसिंग विंडो. It already comes inbuilt with such properties that you will not have such problem. Cycle time reduction, this is one very good point. You can really actually reduce the cycle time. We have done it at many of the places. When one of the very big customer, Videocon Industries, they make very big components, tubs and tanks and for this washing machine and all. So this is where we tried one of our product and we were able to reduce about 20% of the cycle time. This means what? Capital investment कम हो गई, उतनी मशीन में ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया हमारा. जहाँ पे आज 10 टैंक बना रहे थे वहाँ शायद 11 बना लेंगे. ज़्यादा नहीं बोलता हूँ सर, पूरे दिन में अगर 2-4 टैंक भी ज़्यादा बना लिए विद द सेम मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, तो कुछ ना कुछ तो शायद बच ही जाएगा. So this is one of the added advantage. Processability helps you in processing because